everyone, I welcome you all to my channel, and in today's series we are going to start a new chapter, that is digestive system. So without any further ado, let's get started. So before studying about any system, we should know that what is the need of that particular system in our body. So the need for digestive system is, that is, the food we eat, it cannot be utilized as such in the body, कि जैसे हम खाना खाते हैं वो उसी तरह से बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता है, एंड इट मस्ट बी चेंज्ड इनटू अ सॉल्यूबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म. ठीक है, वो एक सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो एब्जॉर्ब होता है टू गेट एब्जॉर्ब बाय द ब्लड. फिर वो ब्लड में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, एंड फाइनली इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी. Now, certain foods containing sucrose are already soluble in water, and they require a breaking down of their molecules into the smaller units so that they could pass through the cell membrane of the wall of the gut. What does it mean? It means that we are well aware that जो cell membrane होती है, it is semi-permeable, which means that it allows only certain particles to pass in and out of the cell. So sucrose एक बड़ा molecule है, तो वो as direct जो है वो सेल के अंदर पास नहीं हो सकता है. देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड कि वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होके फिर वो सेल मेम्ब्रेन को पास करें. ठीक है, तो नेक्स्ट इज डाइजेशन. What is digestion? Digestion is simply the breakdown of the naturally occurring foodstuffs into the diffusible or absorbable form. So this is the definition of digestion. Next is, or we can also say that digestion is any change which makes the food soluble and of such chemical nature that it can be absorbed radially through living organisms and the living membrane. ठीक है, तो डाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जो लार्जर पार्टिकल्स हैं उनकी ब्रेकडाउन होके उनको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना. एंड व्हाट इज दैट, इट इज़ अ केमिकल नेचर. ठीक है, इट कैनॉट बी रिकन्वर्टेड इनटू द नेचुरल फूड स्टफ. सो this is the digestion. Now a term arises, that is, what do you mean by enzymes? क्योंकि enzymes का ही particular role होता है digestive system में, and they're what they play a key role in the digestion of the food. ठीक है, क्योंकि enzyme की वजह से ही various molecules, macro molecules, they get converted into the micro molecules. ठीक है, macro and micro, the term specifies macro means larger molecules, whereas the micro means smaller molecules. Now we are having 100 of enzymes which are involved in the digestion, but the general characteristics of all the enzymes are the same. ठीक है, कि बहुत सारे different enzymes होते हैं, trypsin होता है, renin होता है, but enzymes differ हो सकते हैं, उनके functions में difference हो सकता है, but जो एक general characteristic है enzymes की वो overall क्या रहती है, same रहती है. तो अगर हम characteristic of enzymes की बात करें, so this is a pic I have taken from your book only, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो चीज़ों को समझना, बिकॉज यू आर हैविंग योर बुक एंड यू कैन ओपन योर पेज नंबर एंड you can study it from here. So if we talk about the characteristics of the enzymes, we know that जो enzymes होते हैं वो basically proteins होते हैं and they can be destroyed by heating. ठीक है, अगर बहुत severe heating की जाए तो जो proteins है वो denature हो जाते हैं. तो basically इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से कि जो प्रोटीन्स है या एंजाइम्स है वो क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. उनकी एक्टिविटी में क्या हो सकता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है. It acts only on one kind of substance which is called the substrate, which means that it is specific. इसका मतलब हुआ कि जो एक पर्टिकुलर एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए बना होता है. ठीक है, सबस्ट्रेट में क्या होता है, बाइंडिंग साइट्स होते हैं, और वैसे ही एंजाइम्स में उस पर्टिकुलर एंजाइम में क्या होता है, वैसी ही साइट्स क्रिएट होती हैं जैसे वो सबस्ट्रेट में होती हैं, सो दैट इट फिट्स लाइक अ लॉक एंड की. ठीक है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस होती है जहाँ पे जो सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे के साथ ऐसे फिट होते हैं जैसे मानो लाइक अ लॉक एंड की. जैसे एक ताले के अंदर एक चाबी का फिट होना इज सिमिलर टू दैट ऑफ फिक्सिंग ऑफ द सबस्ट्रेट टू द fixing of the enzyme to the substrate, which means that it is specific and it always forms the same end products from the substrate. वो जो है वो क्या बनाता है, सेम end products बनाता है substrate से. It only affects the rate of the chemical reaction and always speed up the reaction. जो enzymes होते हैं basically वो क्या करते हैं,
वो अफेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ द रिएक्शन एंड बेसिकली दे ऑलवेज स्पीड अप द रिएक्शन। बट बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को कम करने में हेल्प होते हैं। नाउ लाइक अ कैटलिस्ट इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है, जैसे कैटलिस्ट होता है सिमिलर इज द एंजाइम विच मीन्स दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं है कि एक बार एंजाइम यूज हुआ तो बस उसके बाद वो फिनिश हो जाता है, बट रेदर व्हाट हैपन्स इज कि जो एंजाइम है वो हर बार मतलब यूज़ हम उसे कर सकते हैं। एंड यू नो कि जब भी हम हमारी बॉडी में इतने सारे एंजाइम्स होते हैं तो अगर वो एंजाइम्स अगेन एंड अगेन वर्क ना करें तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर डाइजेशन। नाउ इट एक्ट्स बेस्ट ओनली एट अ पर्टिकुलर पीएच। इट इज़ वेरी क्लियर कि एंजाइम्स की हमेशा एक पर्टिकुलर पीएच होती है, एक पर्टिकुलर पीएच में ही वो एंजाइम वर्क करता है। अगर बहुत सारा हीट उस मान लीजिए एक एंजाइम की पीएच है 8, ठीक है, तो वो 8 में ही एट पीएच में ही जो है वो उसकी ऑप्टिमम पीएच है कि वो उसी पीएच में अच्छा फंक्शन करेगा। अगर उस पीएच से आगे या पीछे हो जाए देन इट विल हैव डिस्टर्बेंस, ठीक है। लाइक यू कैन से कि अगर कोई एंजाइम्स है वो एसिडिक कंडीशन में वर्क करता है तो वो उसका एक ऑप्टिमम कंडीशन है कि वो एसिडिक नेचर में ही वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज it acts best within a narrow temperature range which is usually 35 to 40 degrees Celsius and it is called the optimum temperature. This question is very important and it always comes कि जो enzyme का जो optimum temperature है what is the optimum temperature of the enzyme, that is 35 degrees Celsius to 40 degrees Celsius, or rather question can also come that what do you mean by optimum temperature. So this seventh point is very important. Next, I would like to come to the particular system which we are going to learn today, that is the digestive system. अब सबसे पहली बात, digestive system is divided into two parts. First is the alimentary canal and second is the digestive glands, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, बच्चे इसमें बहुत बड़ी गलती करके आते हैं कि दे ऑलवेज डू कि व्हाट दे क्वेश्चन कम्स कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो क्या करते हैं, they start writing with the esophagus, buccal cavity, esophagus, stomach and so on, but it is not true. We know that digestive system has two parts only. First is the alimentary canal. Alimentary canal further comprises of these buccal cavity, esophagus, stomach, intestine and so on, but जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके सिर्फ दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल इज व्हाट, इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब विच स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, जो माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है एंड इट एंड्स एट द एनस, ठीक है, वो एनस तक, दिस इज व्हाट योर एलिमेंट्री कैनाल। Now, it is usually 9 meters long and it is highly coiled in the certain regions, especially in the small intestine. You can see ये small intestine है, तो इसमें क्या है, जो elementary canal है वो specially जो है बहुत ज़्यादा coiled है, highly coiled है, ठीक है। Now, in addition to the digestive glands located in the lining of the various regions of the digestive tube, two large digestive glands like liver and pancreas. सो लीवर एंड पेनक्रियाज दो लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं एंड 3 सलाइवरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ओरल कैविटी। ये देखिए, पैरोटिड ग्लैंड है, सब मेंडुलर ग्लैंड है एंड सब लिंगुअल ग्लैंड है। ये जो 3 ग्लैंड्स हैं दे आर बेसिकली लोकेटेड इन द ओरल कैविटी। अब हम जो है एलिमेंट्री कैनाल का एक एक करके पार्ट डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट बीइंग द माउथ, ठीक है। The mouth, which is also called the oral cavity, is the space where the food is chewed and mixed with the saliva, ठीक है, जहाँ पे हम माउथ इज व्हाट, द ओरल कैविटी, जहाँ पे हम खाना खाते हैं एंड इट इज़ बेसिकली chewed there with the help of teeth and mixed with saliva with the help of these 3 glands, ठीक है। ये 3 glands जो हैं ये saliva secrete करते हैं and with the help of that the digestion of food becomes much easier. Now, the lip helps in closing the mouth, sucking and sipping liquids, speaking, and also in perceiving certain sensations which are especially those of touch and heat. तो ये तो बहुत easy है. Next is the muscular tongue. Tongue, what is the function of tongue? Tongue, it helps in the manipulating of the food while chewing and mixing it with saliva.
swallowing में हेल्प करता है, टेस्टिंग में हेल्प करता है, क्लीनिंग द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द टीथ आफ्टर ईटिंग एंड ऑब्वियसली इन स्पीकिंग. सो नेक्स्ट इज आवर टीथ. वी नो कि जो टीथ है दे हैव अ वेरी स्पेशल रोल, दैट इज दे कट एंड ब्रेक द फूड इनटू द स्मॉलर बाइट्स. अब जो स्मॉलर बाइट्स होते हैं उनका एक लार्ज सरफेस एरिया होता है एंड उन लार्ज सरफेस एरिया में क्या होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं दे कैन एक्ट बेटर, ठीक है, एंड हेल्प्स इन फर्दर बेटर डाइजेशन. Now we know that human adult they have normally 32 teeth and जो teeth होते हैं उनके different shape होती हैं and they perform different functions. ठीक है, it is not कि सभी teeth जो हैं वो same shape के हों और same functions करें. No, sometimes you chew the food from the very front part, sometimes from the very back and somewhere from the middle also. So they have different functions. So let's get started with the incisors. ठीक है, जैसे इस डायग्राम में भी दिख रहा है कि इंसीजर्स हैं, कैनाइंस हैं, प्रीमोलर्स हैं एंड मोलर्स हैं. तो दिस इज व्हाट कि ये हैं टीथ के पार्ट्स. नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट विद द इंसीजर्स. जो इंसीजर्स होते हैं दे आर द 4 फ्रंट टीथ इन द सेंटर ऑफ ईच जॉ. ये देखिए, दीज आर व्हाट योर इंसीजर्स एज इट इज लेबल्ड हियर ऑल्सो, इट इज इंसीजर्स. तो ये फ्रंट में पाए जाते हैं. फ्रंट 4 टीथ जो होते हैं वो हर एक जॉ में, मतलब 2 ऊपर 2 नीचे, दे आर कॉल्ड द इंसीजर्स एंड दे हैव कटिंग एजेस. और उनकी जो कटिंग एजेस होती हैं वो बहुत ही ब्रॉड होती हैं. एज यू कैन सी ये ब्रॉड हैं, ठीक है, एंड दे आर शार्प इनफ एंड दे आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग एनीथिंग. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द कैनाइंस. कैनाइंस आर वन ऑन ईदर साइड ऑफ द इंसीजर्स इन ईच जॉ. अब देखिए ये है कैनाइन, ठीक है. तो कैनाइन जो है दिस इज वन कैनाइन हेयर एंड दिस इज अनदर कैनाइन हेयर. तो कैनाइन जो है वो इंसीजर्स के लेफ्ट एंड राइट प्रेजेंट होता है. हर जॉ में जो कैनाइन होता है वो इंसीजर्स के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है. दे आर कॉनिकल एंड दे शार्प पॉइंटेड फॉर होल्डिंग एंड टीयरिंग द फूड. इनके जो पॉइंट होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं. एज यू कैन सी ये देखिए, शार्प एजेस हैं, शार्प हैं, नीचे से हाईली पॉइंटेड हैं एंड दे हेल्प इन होल्डिंग एंड टीयरिंग द फूड. नेक्स्ट इज योर प्रीमोलर्स. अब हम बात करते हैं प्रीमोलर्स की. तो प्रीमोलर्स आर 2 ऑन ईच साइड इन ईच जॉ नेक्स्ट टू द कैनाइंस. तो कैनाइंस के आगे दोनों साइड जो हैं वो प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं. यू कैन सी आई एम लेबलिंग इट हेयर ऑल्सो विद द डिफरेंट कलर्स सो इट विल मेक यू वेरी क्लियर. सो जो प्रीमोलर्स होते हैं दे हैव 2 हिल लाइक प्रोजेक्शंस. ये देखिए, these hill like projections they are called cusps on its surface and hence they are known as bicuspid. ठीक है, 2 cusp हैं तो इसका मतलब 2 हैं तो they are known as bicuspid. Now premolars they help in grinding and crushing of the food. सो आई होप कि आपको इंसीजर्स, कैनाइंस एंड प्रीमोलर्स जो है वो बहुत क्लियर हो चुके हैं. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोलर्स. अब मोलर्स क्या होते हैं, दिस आर द लास्ट 3 टीथ ऑन ईच साइड इन ईच जॉ. सो ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो मैं लेबल कर रही हूँ विद डिफरेंट कलर्स, दिस इज ओनली द वन जॉ. लेट इट बी द अपर जॉ. सेम गोज विद द लोअर जॉ ऑल्सो. तो मोलर जो हैं वो 3 होते हैं हर साइड में. ठीक है, यू कैन सी. अब देखिए 3 होते हैं हर जॉ में, हर साइड में. दे हैव अ लार्जर सरफेस दैन द प्रीमोलर्स. इनका सरफेस एरिया जो है वो लार्ज है. यू कैन सी, ये देखिए, अगर हम प्रीमोलर्स और मोलर्स को कंपेयर करें तो मोलर्स का सरफेस एरिया लार्जर है एज कम्पेयर टू द प्रीमोलर्स. और जो इनका फंक्शन है बेसिकली दैट इज ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ द फूड. द लास्ट मोलर ऑफ ईच साइड इन ईच जॉ इज कॉल्ड द विजडम टीथ. अब देखिए, लेट मी लेबल इट हेयर. ये दिस वन टीथ एंड दिस वन टीथ, ये जो 2 टीथ हैं दीज आर नोन एज द विजडम टीथ. अब इन्हें विजडम टीथ क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे अपीयर लास्ट एट एन एज ऑफ अबाउट 17 to 20 ईयर्स. ठीक है, जब ह्यूमन बॉडी जो है या ह्यूमन जो है अपनी मेच्योरिटी की तरफ रीच होने लगता है, देन दीज विजडम टीथ अराइजेस. नाउ अब देखिए, ह्यूमन और मेमेलियन टीथ दे आर डिफरेंट इन शेप एंड दे आर नोन एज हेट्रोडोंट. तो हेट्रोडोंट, एज द नेम स्पेसिफाई, हेट्रो स्टैंड्स फॉर डिफरेंट एंड डोंट स्टैंड्स फॉर टीथ, एज अपोज टू द होमोडोंट.
होमोडोंट मतलब सिमिलर टाइप ऑफ टीथ की सिमिलर शेप है सबकी एंड सिमिलर फंक्शन है. बट इफ वी टॉक अबाउट हेट्रोडोंट जैसे ह्यूमंस में होता है, वी हैव सीन कि इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स दे हैव डिफरेंट शेप. इट इज़ वेरी क्लियर हेयर ऑल्सो कि इनकी कितने डिफरेंट शेप्स हैं, तो देयरफॉर इट इज़ रिगार्डेड एज हेट्रोडोंट. एंड इफ वी टॉक अबाउट होमोडोंट, तो होमोडोंट जो है वो एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे वी कैन सी दैम इन लिजार्ड्स एंड फ्रॉग्स ऑल्सो. आप देखिए जो मैमल्स में या ह्यूमंस में क्या होता है, जो टीथ है दे अपीयर बेसिकली इन द टू सेट्स ड्यूरिंग द लाइफ. वी आर वेल अवेयर कि चिल्ड्रंस के जो टीथ होते हैं दे फॉल ऑफ एंड न्यू टीथ दे अराइजेस. सो जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ जो अराइज होते हैं चिल्ड्रन में, दे आर नोन एज द मिल्क टीथ विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 20 टीथ. ठीक है, सारे प्रेजेंट होते हैं सिवाय प्रीमोलर्स के. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रीमोलर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते. एंड व्हाट हैपन्स जब चाइल्ड जो है ही और शी इज़ अबाउट 2 years ओल्ड, तो जो टेम्पररी टीथ हैं जिन्हें हम डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, दे फॉल ऑफ एंड एज द रिजल्ट ऑफ दियर रूट्स बीइंग डिजॉल्व अवे इन द जॉ. तो जो उनके रूट्स हैं टीथ की वो जॉ में ही डिजॉल्व हो जाती हैं एंड दे कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ. ठीक है, बाय अबाउट 12 years ऑफ एज. तो दिस इज विच वी आर सीइंग नाउ इज, ये जो है ये एक परमानेंट टीथ का एग्जाम्पल है. तो ये है परमानेंट टीथ क्योंकि ये ह्यूमन एडल्ट्स में पाए जाते हैं. तो दिस इज द diagram which shows the temporary teeth in the child. So and one more thing is there that the number of the permanent teeth of the mammals is usually indicated by a formula. ठीक है, where the number of incisors, canines, premolars and molars is given strictly in the same order for 1/2 of each jaw. So this was what I was talking about कि human child में up to 2 years जो डेंटल फॉर्मूला है दैट इज 2102 अपॉन 2102, विच मीन्स दिस इज फॉर द अपर जो एंड दिस इज फॉर द लोअर जो. सो दैट इज इक्वल टू 20 विच इज नोन एज द मिल्क टीथ विच फॉल ऑफ आफ्टर द 2 years. और 17 और 20 years के एज में परमानेंट टीथ अराइज होते हैं विच इज नोन एज द ह्यूमन एडोलसेंट एज. तो अपर जो में देयर विल बी 2122 एंड लोअर जो में 2122 सिमिलर and which is equal to 28 जो इन्हें हम permanent teeth भी कहते हैं. So if we go to the human adult which we have 32 teeth, ठीक है, जिन्हें हम permanent teeth भी कहते हैं with 4 wisdom teeth. ठीक है, as we have read earlier also. So upper jaw will contain 2123 and the lower jaw will also contain 2123. So that is equal to 32. So here one thing you have to understand कि जो 2120 और 2122 और 2123 जो दिया हुआ है दैट इज़ व्हाट इट मीन्स कि जो इफ़ यू टॉक अबाउट चाइल्ड, तो चाइल्ड के केस में दिस टू रिप्रेजेंट कि इंसीजर्स, जो बच्चे में इंसीजर्स हैं वो 2 हैं इन ईच जॉ, वेयर एज कैनाइन्स 1 विल रिप्रेजेंट द कैनाइन, प्रीमोलर्स आर एब्सेंट इन चाइल्ड, therefore it is represented as 0, whereas molars they are 2. ठीक है, तो this is what ये डेंटल फॉर्मूला है विच विल कंटेन द इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन एडल्ट, सेम गोज विद द ह्यूमन एडोलसेंट ऑल्सो. ये जो 2-1 है दे विल रिप्रेजेंट द इंसीजर्स, कैनाइन्स, एंड दिस 2 विल रिप्रेजेंट द प्रीमोलर्स एंड दिस 3 विल रिप्रेजेंट द मोलर्स. तो बेसिकली जो ये एक सीक्वेंस है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द टीथ, कि टीथ के टाइप्स पे है. जैसे पहला जो है वो इंसीजर्स है, फिर नेक्स्ट इज योर canines, next is your premolars and next is your molars. So I hope this is clear to you and you'll never forget it. So with this we have completed the 2 parts of the alimentary canal, first being the mouth and second being the teeth, and in the next video I will teach the structure of a tooth. So subscribe to my channel, and if you find my videos helpful, do share them and like them. See you in the next video with the topic structure of teeth.